हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਨਲਾਈਟ। ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਨੋਮੇਨਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਪਲੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਰੇਨਬੋ। ਕਿ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਫ ਸਕਾਈ, ਕਿ ਸਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਨ ਸੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਨ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡਿਸ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਊਡਸ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਫ ਕਲਾਊਡਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੰਡਰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮਨਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਰੇਨਬੋ। ਤਾਂ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰੇਨਬੋ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੋਪਲੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਏਅਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਾਟਰ ਦੇ ਡ੍ਰੋਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡ੍ਰੋਪਲੇਟਸ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਨਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਨਬੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਨੂੰ ਅਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਰੇਨਬੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਨਬੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡ੍ਰੋਪਲੇਟਸ ਹੈ ਸਨ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਬੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੈਕ ਸਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਨਬੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਨਬੋ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਨਬੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੋਪਲੇਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਨਬੋ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਨਬੋ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੋਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਰਸ ਜੋ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਏਗੇ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਇਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਇਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਇਲਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਨਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਟ 2 ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਇੰਟਰਨਲ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਨਬੋ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ 1 ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿ ਲਾਈਟ ਡਰੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ 2 ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ 1 ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਦਾ ਬੋਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਰਕਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਕਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਨਬੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ।
तो देखो ये ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, तो इहदे ओपोजिट होंदा है कि लाइट जी नीचों एंटर करती है, तो लाइट इत्थों एंटर कर रही है जी इस ड्रॉप दे विच, तो इत्थों रिफ्रैक्शन होएगी, तो रिफ्रैक्ट हो रही है, इत्थे जाके टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होंदी है, दोबारा इत्थे जाके स्ट्राइक करती है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होंदी है, तो जदों फिर आके इस दे उपर स्ट्राइक करती है तो इत्थों फिर रिफ्रैक्ट होंदी है, रिफ्रैक्ट होकर फिर ऑबजरवर तक जाती है। हुण असीं रेज की सैपरेशन नहीं शो कर रहे कि वायलट तो रैड, हुण असीं उसका सिर्फ पाथ शो कर रहे हैं। देखो जी सेकेंडरी रेनबो दे विच की हुंदा है कि इस दे विच लाइट अंदर जाने वेले ते बाहर आने वेले दो रिफ्रैक्शनस सफ़र करती है, टू रिफ्रैक्शनस, बिल्कुल प्राइमरी रेनबो की तरह, बट इहदे विच अंदर दो बारी टोटली इंटरनल रिफ्लैक्शन होंदी है। पहला इत्थे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होंदी है, फिर इत्थे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होंदी है जी, तो टू टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शनस हो गई। ठीक है जी, जो ये ऑबजरवर तक पहुँचती है तो उसके एंगल का डिफरेंस है, ये 50 डिग्री तो लैके 53 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो इस रेनबो के डिफरेंस है जी कि कलर्स इन्वर्टिड होंगे, वायलट कलर जोड़ा वो टॉप पर होंगे तो रैड कलर जोड़ा वो बॉटम पर होंगे। ठीक है, क्योंकि इस दे विच लाइट वार वार टोटली इंटरनली रिफ्लैक्ट कर रही है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो लैस होंदी है प्राइमरी रेनबो तो, मतलब ये थोड़ी जी डल जी बनती है, इन्नी क्लीयर नहीं होंदी जिन्नी प्राइमरी रेनबो होंदी है। तो हुण जदों तुसीं रेनबो नूं देखो तो चैक करिया जी कि वो प्राइमरी रेनबो फॉर्म हो रही है कि सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हो रही है, किहड़ा कलर टॉप ते है तो किहड़ा कलर बॉटम ते है, जो आर्क्स फॉर्म हो रही हैं रेनबो दियां। ठीक है, तो नैक्सट फिनोमेना जो असीं डिस्कस करन जा रहे हैं दैट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग की चीज़ है कि जो सनलाइट आती है तो एटमोसफीयर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के उपर स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करके तो अलग अलग डायरैक्शनस के स्कैटर कर जाती है। तो इस फिनोमेने नूं स्कैटरिंग कहते हैं कि उसकी लाइट की डायरैक्शन जो है चेंज हो जाती है। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर करती है दैन लॉन्गर वेवलेंथ लाइट। तो इसनूं भी आप डिस्कस करते हैं, जो असीं गल कर रहे सी ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, जो सन राइज या सनसैट ते असीं इफैक्ट्स देखते हैं, रैडिश कलर देखते हैं सन का, तो सारा इसे करके है स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके। तो असीं स्कैटरिंग ऑफ लाइट ते बेस्ड इसनूं एक्सप्लेन करते हैं। वैन सनलाइट ट्रैवल्स थ्रू एटमोसफीयर इट गैट्स स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन एटमोसफीयर, कि उसकी जो डायरैक्शन है उसदे चेंज आती है, कि जिसनूं असीं कह दिंदे कि लाइट खिलर जाती है सारे पासे। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मच मोर दैन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर करती है एज़ कंपेयर टू लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। रेले एक साइंटिस्ट होया जी, उसने एक क्राइटेरिया दिता जिसनों असीं रेले क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग कहने हैं, या रेले स्कैटरिंग कहने हैं। तो कहता जी जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है आई दैट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ये कदों होंदा है जी कि जदों ए इज़ लैस दैन लैमडा। ए की है कि जो स्कैटरिंग सेंटर है, जो स्कैटरिंग ऑबजैक्ट है, जो लाइट स्कैटर कर रहा है, उसका साइज़ बहुत स्मॉल है एज़ कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब लाइट एहो जो ऑबजैक्ट ते जाके स्ट्राइक कर रही है जिसका साइज़ मच स्मॉलर है एज़ कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो उदों इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इनवर्सली प्रपोर्शनल होएगी 4th पावर ऑफ वेवलेंथ के। मतलब अलग अलग कलर्स अलग अलग स्कैटर करनगे, जिनकी वेवलेंथ घट है वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। ठीक है, तो जो इस तरह नहीं होएगा, मतलब ए ग्रेटर दैन लैमडा होएगा, तो उदों फिर सारे कलर इक्वली स्कैटर करनगे। तो इहदे ते बेस्ड असीं कुछ फिनोमेनाज नूं एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह कि फस्ट है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है जी, हुण जदों असीं कलर्स देखते हैं लाइट दे विच, तो विबग्योर जो एक्रोनिम है उसके अकॉर्डिंग जो वायलट कलर है आंदा इंडिगो ब्लू सारे इक्को ही शेड के कलर है। देखो तुसीं तो वायलट कलर की वेवलेंथ जोड़ी है वो लैस है एज़ कंपेयर टू रैड लाइट, जोड़ा कि सैकेंड एंड पे है। तो वायलट कलर जोड़ा ज़्यादा स्कैटर करता है। ठीक है, बट अपनी आई जी है वो ब्लू कलर प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कंपेयर टू वायलट। तो सानू जो लाइट स्कैटर करती है जो स्काई है वो अपीयर ब्लू अपीयर होंदा है, क्योंकि ब्लू कलर जोड़ा है वो मच मोर स्कैटर कर रहा है एज़ कंपेयर टू रैड लाइट। ठीक है, तुसी वायलट कलर कह लो या ब्लू कलर कह लो। ठीक है, तो मिक्स या शेड सानू ये दिखाई दिंदा है वायलट ते ब्लू का जो स्काई का कलर है, जिसनों असीं ब्लू कलर ऑफ स्काई कह दिंदे हैं। तो ब्लू कलर हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ एज़ कंपेयर टू रैड कलर, सो ब्लू कलर स्कैटर्स मच मोर एज अकॉर्डिंग टू आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 को स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है जी, असीं उपर देखते हैं जी सानू स्काई असीं कहने हैं जी। तो स्काई की है, ये स्कैटर्ड ब्लू कलर है बस जो सानू दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ड्यू टू एटमोसफीयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। सो when light is scattered from water and dust particles present in clouds, तो जो इन्हां दा साइज़ है that is much greater than wavelength of light, सो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेज़ टू पावर 4 इत्थे एप्लीकेबल नहीं होंदा। ठीक है, तो सारे कलर्स जिहड़े है इक्वली स्कैटर करते हैं, ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली। तो जो सारे कलर्स इक्वली स्कैटर करते हैं तो वाइट कलर अपीयर होंदा है जी, तो क्लाउड्स अपीयर वाइट। ठीक है, तो नंबर 3 तो देखो जी सनराइज़ ते सन सैट ते सानू की फिनोमिना देखने को मिलता है कि जो सन बिल्कुल टॉप ते होंदा है तो उस तो जो लाइट आ रही है तो एटमोसफेयर दे विचों शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो जे सन हॉरिजन दे अलोंग है जिस तरह की सनराइज़ ते सनसैट ते सानू देखने को मिलता है, तो जो सनलाइट नूं लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पैंदा थ्रू द एटमोसफेयर, ज़्यादा टाइम जिहड़ी है लाइट वो एटमोसफेयर दे विचों ट्रैवल करती है। ठीक है, तो उसकी स्कैटरिंग होंदी है एटमोसफेयर के पार्टिकल्स दे विच। तो देखो जो शॉर्टर कलर की वेवलेंथस है वो सारियां स्कैटर कर जांदियां, ब्लू वायलट इंडिगो ग्रीन। तो रैड कलर सब तो घट स्कैटर करता है, इसलिए साढ़े तक रैड कलर ही पहुँचता है। तो जो सन है वो रैडिश अपीयर होंदा है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है जी, रैड कलर लीस्ट स्कैटर करता है अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया, तो साढ़े तक रैड कलर ही पहुँचता है। तो सनराइज़ ते सनसैट ते सानू जो सन है वो रैडिश अपीयर होंदा है। सिर्फ सन नहीं, जो मून भी हॉरिजन ते होंदा ना तो मून भी रैडिश अपीयर होंदा है। ठीक है, तो इस ते बेस्ड एक होर क्वेश्चन आता है जी, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रैड, कि डेंजर सिग्नल्स रैड क्यों होंगे जी। उनका कारण भी यही है क्योंकि रैड कलर जोड़ा है वो सब तो घट स्कैटर होंदा तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, तो सानू बहुत दूर तो रैड कलर जो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डेंजर सिग्नल्स रैड होंगे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तुसी अपने आप देना है कि वाई डेंजर सिग्नल्स आर रैड। तो आई होप कि तुहानू इस स्कैटरिंग का टॉपिक जो है समझ लग गया होगा। बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है, इस दे विच बहुत नैचुरल फिनोमिनाज है जो असी देखते हैं, बट इन्हां दी एक्सप्लेनेशन बारे सानू नहीं पता होंदा। ठीक है, तो आई होप कि तुसी इसनू स्टडी करोगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।